We are at a Pota Cabin school in Orchha district of Narayanpur, where people send their kids from far-flung areas of Chhattisgarh. Lot of children who are aged between 5 and 16 study in this school, which runs classes from class 1 to 10. The school has over 15 teachers and over 11 caretakers, and the students who study here also stay in this area. So the school provides them with a hostel facility in which they get beds to sleep. They also get food. They get provisions of books, clothes, and everything else is also provided by the school authorities. This school cum hostel is run by the state government to provide education, food and accommodation for these tribal children who do not have access to formal education. In Chhattisgarh, there are many pockets covered with thick forests that are grappling with left-wing extremism, are not well connected by roads and have no phone connectivity. In such places, the tribal children, mostly Gonds and Halbis, do not have access to education. Either there are no schools in their villages or they have been destroyed by the Naxals or rendered defunct. In many cases, their parents were forced to flee their villages or they have died of an illness, leaving their children orphaned. To address the issue, the state government started these Pota Cabin schools in the year 2012. The idea, state government officials told the print, is to make education accessible again. The curriculum in these schools follow the State Council of Educational Research and Training syllabus, and the teachers and wardens along with other staff including the cooks, sweepers are all recruited by the state education department. Most students studying in these schools who come from far-flung areas want to become either doctors because of non-existent healthcare facilities in their villages or teachers because the tribal children living in these areas have no access to schools. For Rinku and Suhan Mandavi, who have seen their friends and family members die due to illnesses that went undiagnosed, becoming doctor is like a mission. मैम, मेरा नाम रिंकू कुमार यादव है। कब मैं से कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ते हो? क्या आपका विषय सबसे ज़्यादा रुचि है आपको? किस विषय में? यहाँ तो सभी विषय का पढ़ाई होता है, लेकिन साइंस से रुचि है। साइंस में रुचि है। किस वजह से हुई है साइंस में रुचि? साइंस में बहुत अच्छा है, जहाँ सर मन बताते हैं। और क्या बनना क्या चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर वाले बड़े कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। आप क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर? जी, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है जी, और हॉस्पिटल भी नहीं है जी, एक डॉक्टर बनना। तो आपने देखा है अपने गांव में लोगों को बीमारी से मरते हुए, या बहुत से लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं अस्पताल, इस वजह से आपको लगता है कि डॉक्टर ज़्यादा होने चाहिए इस इलाके में? ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ज़्यादा? कि जो बीमार होते हैं तो जाके इलाज करने की सुविधा हो। जी, सबसे पहले आप यहाँ पोटा कैबिन में आए 2013 में, तो थोड़ा मुझे अपने अनुभव के बारे में बताइए। स्कूल में पढ़ने के लिए आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हो जी। क्या क्या सीखा आपने? कौन से विषयों में आपको रुचि है? मेरे को तो साइंस का अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मतलब जब से साइंस पढ़ रहा हूँ तो मेरे को साइंस में बायोलॉजी अच्छा लगता है। बायोलॉजी अच्छा लगता है। क्या बनना क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अपने गांव वैसे भी क्या बोलने से वो नहीं है, हुआ मतलब अस्पताल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है जी, इसलिए आपको लगता है कि डॉक्टर होना एक ज़रूरी चीज़ जी। तो आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो फिर आप अपने गांव में जाके लोगों का इलाज करना चाहते हैं? नहीं, गांव तो यही है मैम, फिर मैं यही वर्चा मिला, मतलब वर्चा में रहकर डॉक्टर की काम करेंगे जी। Many students also dream of becoming teachers so that they can go back to their villages and teach students who are unable to reach these schools. टीचर है। क्यों? हमारा गांव में बहुत कमी है मैम जो शिक्षित लोग। अच्छा। इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। वहाँ शिक्षित कमी होने के कारण वहाँ रोड की सुविधा भी नहीं है मैम, तो हम वहाँ पढ़ लिख के स्कूल खोल। To get these children to school, local volunteers and teachers traverse through treacherous paths that involve hikes, crossing of rivers for days, to go from village to village to identify children who are school going but do not have access to school and then convince their parents. Once the children reach the school, they take some time to get accustomed to a new routine in life but take it up very well and very fast. सर, थोड़ा इस स्कूल की फंक्शनिंग के बारे में बताइए कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कितने टीचर्स हैं और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं बच्चों को? यहाँ पे मैडम
पहली से 10वीं तक के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, और सुविधाएं तो सभी प्रकार की दी जाती है। इनका ड्रेस से लेकर जूता, मोजा, बैग, और साप्ताहिक इनको साबुन तेल दिया जाता है, ड्रेस भी दिया जाता है। सभी प्रकार की इनके जो बच्चे लोगों के जो उपयोग के लायक हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। खाना पीना और बाकी जो है रहना व्यवस्था वो सब की जाती है इनके हाँ लिए? हाँ, रहने के लिए हॉस्टल है जी। और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। कितने टीचर्स हैं आपके पास और क्या क्या विषय पढ़ाते हैं? हमारे पास अभी 15 अनुदेशक हैं मैडम, जी। और 11 रसोईया मतलब कार्यकर्ता हैं, जी और सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे। जी। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं स्कूल में, और थोड़ा और बताइए स्कूल के बारे में, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के ग्रोथ के लिए यहाँ पे होती हैं? पढ़ाई के अलावा मैडम यहाँ स्पोर्ट्स है, खेल खिलाते हैं, कबड्डी, खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब खेल खिलाते हैं। जी। और बाकी आप क्या करते हैं पूरे दिन में? थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए। जी हाँ, टीचर्स अच्छे हैं मैम, पढ़ाते लिखाते हैं। मैं तो पहले से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके तो बहुत दोस्त भी होंगे। जी बहुत है मैम। साथ साथ आपके दोस्त भी चल रहे हैं, 12वीं तक चलेंगे अब तो? जी। While the medium of instruction in these schools is Hindi, for children who are enrolled from class 1 to 3, it is Murya, the language of their tribe. मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ मिडिल क्लास में 6, 7, 8। तो यहाँ मैम बच्चों का रुचि किसी भी चीज़ मैं देखा हूँ, फेस किया हूँ जंगल में भी, जैसे कोई नया चीज़ देखने में वो लोग बहुत उनका जो कंसंट्रेशन है बहुत अच्छा होता है। तो उस कंसंट्रेशन को हम यूज करके उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाया जा सकते हैं। जी। अब उसके लिए मेरे पास मैं 2-3 आइडिया मैं देखा हूँ चित्र के माध्यम से, जो एक होता है कार्टूनिस्ट वाला, जी। उसको ऐसे हम दिखाए तो और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा। जब मैं साइंस टीचर, साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाना है जी। तो यूजिंग आप आईसीटी का यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। आईसीटी क्या है? आईसीटी मीन्स होता है मैम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी। तो इसका एज अ टूल हम लोग यूज करके बच्चों का जो साइंस में और अदर सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना वो अच्छे से पढ़ेंगे। जी। ये और इसमें जैसे आपने बताया कि 1st to 3rd वाले जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे आते हैं, वो बहुत से हैं जो लैंग्वेज नहीं जानते हैं हिंदी, तो आप दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं? हाँ, तो माड़िया लैंग्वेज और हिंदी दोनों में आप पढ़ाते हैं? यस मैम, दोनों में पढ़ाते हैं। और जहाँ तक से जैसे यहाँ के जो लोकल टीचर हैं जी, उन लोग का जो कम्युनिकेशन है, जो माड़िया जानते ही हैं, तो उनको प्राइमरी के क्लास में 1st, 2nd में उन लोग को पीरियड दिया जाता है ताकि बच्चे उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। मैं जनरली बाहर से आया हूँ, रायपुर से, तो मैं उस पुस्तक को देख के भले बोल सकता हूँ, लेकिन उतना उनसे जुड़ नहीं पाऊंगा जितना यहाँ के लोकल टीचर जुड़ेंगे। तो 1st, 2nd क्लास को जनरली यहाँ लोकल टीचर है जो माड़े जानते हैं उसी को देते हैं। As a set routine, these children wake up at 4 a.m. for study time, and then the prayer is held in the common hall at 5 a.m. The classes formally begin at 9:45 a.m. तो आप कैसे कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को यहाँ पे उनको भेजने के लिए, और कितनी दूर से बच्चे आते हैं? क्योंकि हमें बताया गया कि बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे नदियाँ हैं, बिल्कुल मतलब उसको क्रॉस करके आप लोगों को भी जाना पड़ता है गांव में कन्विंस करने के लिए पेरेंट्स को कि यहाँ भेजिए आप। जी, बहुत दूर के बच्चे हैं मैडम। यहाँ कम से कम नहीं तो 65-70 किलोमीटर दूर के बच्चे हैं, अंदरूनी इलाके के बच्चे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैडम कभी 2 दिन तक की सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी पैदल, पहाड़ी पार करके, नदी वदी पार करके जाना पड़ता है जी। बच्चे को वहाँ पे जाने के बाद भी उनको कन्विंस करने में भी टाइम लगता है। बच्चे पेरेंट्स मतलब मानते नहीं हैं, फिर भी उनको कन्विंस करके लेके आते हैं जी। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उसके बाद जो है वो क्या करना चाहते हैं? इसके बाद आप हाई स्कूल भेजते हैं उनको, कॉलेज भेजते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? जी, यहाँ सभी विषय के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और ये बच्चों को स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी जैसे रुचि होता है मैडम, लाने के बाद भी इन लोग को नवोदय विद्यालय में, एकलव्य विद्यालय में परीक्षा जैसे फाइट होता है मैडम, वहाँ से फाइट करके भी यहाँ से जो वो बच्चे हैं हुनर में हैं बच्चे, उन लोग आगे तक के पढ़ते हैं मैडम। फिर वहाँ जाने के बाद उन लोग 10वीं पास आउट होते हैं, फिर उसको हाई स्कूल में शिफ्ट करवा देते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह भी उससे निकल जाए। ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पे मुझे कुछ ऑफिशियल्स बता रहे थे कि जहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, नक्सलियों द्वारा बॉम्ब कर दिए गए हैं, वो भी बच्चे हैं जो स्कूल वहाँ नहीं जा पाए और यहाँ पे अब उनको लेकर आया जाता है।
जी, अब बच्चे अंदर के तो इलाके में है, अंदर के इलाकों में तो स्कूल है नहीं मैम। वहाँ पे जैसे जाने से बच्चे दिख पे जाते हैं तो पेरेंट्स को हम कन्विंस करके यहाँ पे ले आते हैं पढ़ाई के लिए। The authorities of the school have told us that they usually travel to these far-flung villages to convince the parents of these kids to send them to school. Most of these kids have not been ever to school because due to lack of education facilities in their village, or there are even cases in which the Naxalites have actually attacked the schools and bombarded them, and there's no infrastructure in their village for any sort of school. So the representatives of the school go to these villages and convince their parents to send their kids to this school where they can also stay, study and be in the school for over 10 years. After completing this education here till class 10, they are then sent to high school. This is Ananya Bharadwaj reporting from Orchha with Praveen Jain for The Print.